मैं पहले सेमेस्टर जब मैं आया तो बहुत ही अच्छा मेरी 3.5 जीपीए अच्छी मेरी जीपीए। मुझे ना कुछ ऐसे लोग टकरा गए जिन्होंने कहा कि यार ये पढ़ाई के अलावा भी दुनिया है। तो मेरी ओवर द इयर्स 3.5 से जीपीए 2.7 गई। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're now watching Celebrating Sweet Success right here from the Institute of Business Management. Thanks to our partners Cadbury Dairy Milk and Dreamworld Resorts. I'm your host Sarah Mashood, the Chief Operating Officer at Torque Corp. This show celebrates the drive and determination behind the success stories of our alumni. We're here to connect with them all, uncover the lessons behind their journeys, and enjoy some real, genuine moments together after long. Today's guest isn't just a player in the world of tech and innovation. He is a force. Imagine a career that's taken him from pioneering e-commerce in Pakistan to leading growth for some of the most recognized brands in fintech, telecom, and digital retail. He's got a knack for blending creativity with data and strategy, whether it's launching startups in stealth mode, steering established giants, or growing demand for emerging brands across industries like pharmacy, ride-hailing, and beyond. Just to name a few, he's been the brain behind growth at OLX, led as CMO at Daraz under Alibaba, and powered brand Terra and product strategies at Tavago, Oran, Onyx, and Yango. With roots in media, creative agencies, and PR, he's worked with giants like ARY and Zenith Optimedia. And now he heads his own stealth startup, Bypass. We present to you the innovator, the strategist, and ever-evolving Muhammad Ammar Hassan. Assalamualaikum Ammar, how are you feeling today being back at IOBM? Walaikum assalam ji, absolutely great. I was taking pictures of all the old places which Yes. I recalled my memories with, but awesome. How do you feel listening to the profile that I just read to you? Overwhelmed जी, आपसे इतनी सब तारीफ मुझे किसी ने की नहीं वैसे, so you always feel good. इतना सब कुछ कर लिया आपने, मतलब कैसा फील कर रहे हैं आप? Yeah, Allah has been generous, I mashallah. think, and I think बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, and but I still think it's just a start, and there's a lot more to be done. Yeah, and when was the last time you dropped by at IOBM? Is it your first time after long या आप आते रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल हुआ था जब कोई ड्रामेटिक सोसाइटी का इवेंट था, so I was heading the society. तो बुलाया था नाज सुमरो मैम ने अदर, बट मुझे लगता है गुड 12 इयर्स हो गए अब वापस आए. So how does it feel? How do you feel coming back to the campus now? देखिए, आपकी जो ग्रेजुएटिंग यूनिवर्सिटी होती है ना, उससे आपकी बड़ी एक इमोशनल फीलिंग होती है. True. क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग बैकग्राउंड था वो मेट्रिकुलेशन का था. ठीक है. और आप जब मेट्रिक स्कूल्स के बच्चे होते हैं तो आपका एक लिमिटेड एक्सपोजर होता है. ठीक हो गया. तो जब हम CBM आए तो हमारे लिए ये दुनिया ही बिल्कुल अलग थी, राइट? मिक्स. हम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो एक्सपोजर मेरी यूनिवर्सिटी ने कंट्रीब्यूट किया है वो गेम चेंजिंग था. ओके. यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको ख़वातीन से बात किस तरह करनी है जब आपको एजुकेशन में नहीं पढ़ते हैं, और जब आपको एकदम से, मतलब मुझे आप समझें कि क्लास 8-9 तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि ख़याबान भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दैट पार्ट ऑफ द पुल. आई वाज इन मलीर and I was brought up over there. ठीक है. अच्छा. So जब आपको क्रॉस डेमोग्राफिक, क्रॉस सोशो इकोनॉमिक क्लास लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, सो यू लर्न कि यार अच्छा ये सही कपड़े पहनने का तरीका ये ऐसे होता है, इस तरह बात की जाती है. बेसिक एटिकेट्स सारे. तो वो आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस था. औरों के लिए शायद सबके लिए ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कुछ A levels O levels करके भी आते थे, तो बट आई एम वेरी, I think learning तो उनके लिए भी मौजूद होती है, because they also get to meet a mix of people there. So learning for. अच्छा, कोई wild, कोई funny, कोई inspirational incident जो IOBM के टाइम पे हुआ? ये फुल जी, मैं आई केम इन एज, क्योंकि मेरे वालिद साहब और ने लोन लिया था पढ़ाने के लिए. ठीक है. तो हम पे बड़ा बोझ था कि यू हैव टू डू एकेडमिकली रियली वेल. ठीक हो गया. तो मैं पहले सेमेस्टर जब मैं आया तो बहुत ही अच्छा, मेरी 3.5 जीपीए अच्छी मेरी जीपीए. ठीक है.
लेकिन उसके बाद मुझे पहले 6 महीने के बाद मुझे ना कुछ ऐसे लोग टकरा गए जिन्होंने कहा कि यार ये पढ़ाई के अलावा भी दुनिया है। तो मेरी ओवर द इयर्स 3.5 से जीपीए 2.7 गई। ठीक है। लेकिन वो फिर जिन लोगों के साथ एसोसिएट हुआ वो मेरी फिर क्रिएटिव साइड वहाँ से ड्रामा करना, रैप्स और शोज। उस ज़माने में वी हैड अ वेरी वाइब्रेंट ड्रामेटिक्स कल्चर। तो आई थिंक वो जो मेरी पढ़ाई से ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मोर ऑफ द क्रिएटिव साइड, वो एंड द रिलेशनशिप्स आई हैड क्रिएटेड। मेरे अभी भी कुछ 6, 8, 10 दोस्त हैं जो कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स हो गए। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी से ही बने। ऐसा ही है। एंड देन समटाइम्स वी इन द लास्ट सेमेस्टर आई रिमेंबर वी क्रिएटेड दिस कंपनी कॉल्ड रौनक कंपनी। अच्छा। तो रौनक कंपनी का ऑब्जेक्टिव, मेरी एक दोस्त थी और एक और दोस्त है, तो हम कोरियोग्राफी कंपनी बनाई हमने। ओह वाओ। और उस वक्त ये मेहंदियों पे शादी से ज़्यादा पैसे लग रहे थे, नहीं राइट? तो हाँ, मुझे याद है। फिर हम लोगों ने 4,000 रुपये पर सॉन्ग डांस सिखाने के पैसे, सो मुझे याद है कोई 2 मिलियन 3 मिलियन का सीजन हम लोग पैसे कमा लेते थे। Wow, this is amazing. That was at that time early on. Of course. That was a startup experience जो कि 3 लोग all the great things I think. Are you still in touch with these friends? Absolutely. उनके बच्चे हमारे घर, हमारे उधर। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि family friends ही हैं। Amazing. अच्छा, if you had to sum up in one sentence maybe or a few lines, how has IOBM shaped your personality, or also in career, if you could tell? I think made me confident. ठीक है। एंड करियर के तो अंदर आई थिंक द बैच दैट यू कैरी एट दैट टाइम, वी यूज्ड टू कॉल इट CBM, right? So CBM is still, I know the branding is IOBM, but we take a lot of pride at that time कि यार CBM एक brand name है, and you get early access to good companies at that time also, and I'm sure abhi bhi. So yeah, you can't be thankful enough to for this platform. Yeah. All right, that's great. अच्छा, so now we're going to ask you questions जो cover करेगा आपका वो वाला journey period जो आपने after IOBM गुजारा. Yeah. So a little bit about Zenith Optimedia, Adcom, Leo Burnett, Avenue Concepts, RG Blue Comms, Tetis Pro, इन सब में आपका ground level experience रहा है advertising में, right? Media planning हो गई, creativity हो गई, brand activation हो गई, PR हो गई, तो उसके उस time के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब भी आप हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ना तबकाती निज़ाम है कि लोग अपने लेबल्स के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ उस वक्त बड़ी कंपनियां जो हैं वो जो टॉप 1-2 नाम आते हैं उनके अंदर ग्रेजुएट्स ले लेते थे। CBM के अंदर भी जो टॉप स्टूडेंट्स होते थे वो MT प्रोग्राम में लग जाते थे। ऐसे ही है। तो मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स के लिए एक सोच होती थी कि यार अब क्या करना है, राइट? या तो हर कोई क्योंकि सोचता था कि यूनिलीवर, PNG, फिलिप मॉरिस ब्रांड मैनेजमेंट करियर बनाना है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए फिर ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि यार अच्छा फिर हम एजेंसी साइड चाहते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों को यहीं पे नौकरियां मिलती थी। तो मैंने उस वक्त मैंने ये सही समझा कि मार्केटिंग को सही से समझने के लिए मुझे अपने करियर के शुरू के जो टाइम है वो एज अ जर्नलिस्ट स्पेंड करने पड़ेंगे। सही है। क्योंकि उस वक्त जो मेरी एक खातून होती हैं सिद्रा इकबाल जो जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनकी पहली नौकरी मेरी उनके साथ थी। तो उन्होंने मुझे भी ये बात समझाई थी कि देखिए करियर जो है ना वो एक कैपिटल T की तरह होता है। शुरू के 6-7 साल जो हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी 30 to 40 में स्पेशलिस्ट बनते हैं क्योंकि उस वक्त आपको पैसे कमाने होते हैं और एक हार्ट सर्जन को एक जनरल फिजिशियन से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसा ही है। लेकिन वो 6 साल के अंदर जब मैंने PR सीखी, ब्रांड एक्टिवेशन सीखी, मीडिया सेल्स, क्रिएटिव कैसे बनता है, बिलबोर्ड कितने पैसों का आता है, हम टीवी पे 8 से 9 का रेट क्या है, तो वो जो मेरी इनिशियल मार्केटिंग बेसिक्स और फंडामेंटल्स थे वो इतने अच्छे हो गए कि जब मैं अपने करियर में आगे जाने लगा तो जो ब्रांड साइड पे लोग थे वो उनको वो चीज़ें नहीं आइडिया होती थी जो आपने रगड़ा खा के ग्राउंड अप सीखी हैं।
तो मेरा शुरू का तो 6 साल जो है बहुत ही आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ब्रांड साइड पे चला जाता, आज भी अगर आप मेजॉरिटी एजेंसीज में लोगों से पूछें कि आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो वो बोलेंगे यार क्लाइंट साइड पे लोगों को चीज़ों का पता ही नहीं, और उनकी फरमाइशें और उनके फीडबैक ऐसे होते हैं जो कि यू नो इट्स एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव, राइट? सो आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज when my career started. Wow. अच्छा, फिर उसके बाद founding member at OLX and CMO Daraz. Yeah. What and how? अगेन ये 10 साल का ये पूरा टाइम स्पैन है OLX और दराज का। तो जब मैं एडकॉम के अंदर काम कर रहा था तो OLX वाज अ क्लाइंट जो कि ऑपरेट हो रहा था न्यूयॉर्क से, तो मैं उसका अकाउंट हेड था। सही है। और हमें हमेशा से सिखाया ये गया है कि अगर आपको प्रमोशन लेनी है तो रादर देन आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन वाला काम कर रहे हैं, आप प्रमोशन वाली जो पोजीशन है उसका काम करें। ऐसे ही। तो हमें सोचा, हमारी हमेशा से नज़र ये थी कि यार अगर OLX हमारा क्लाइंट हमें हायर कर ले तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो आई यूज्ड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ देयर नॉन मीडिया प्रॉब्लम्स, राइट? वॉट एवर हेल्प दे नीड इन फाइनेंसिंग, इन प्रोडक्शन, इन क्रिएटिव, मीडिया प्लानिंग तो करते ही थे। तो देन दे ऑफर्ड मी अ जॉब एंड OLX वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूरोप। सो आई देन बिकेम मार्केटिंग मैनेजर ओवर देयर। तो 5 साल उधर मैंने गुजारे। OLX मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ऐसे था कि मार्केटिंग के अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ें करने को मिली। जैसे अचानक से मुझे याद है कि एक कॉल आई मुझे इंडिया से, क्योंकि OLX का जो कस्टमर सर्विस ऑफिस था वो गुड़गांव दिल्ली में था। तो उन्होंने कहा यार हमें ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि PR क्राइसिस हो गया है कि OLX इज़ एन इंडियन कंपनी, so you have to set up the customer service in 2 weeks in पाकिस्तान। तो मुझे कस्टमर सर्विस का अलिफ बे नहीं पता कि IVR क्या होती है, कॉल सेंटर कैसे ऑपरेट होता है, तो मुझे वो पूरा सीखना पड़ा और वो बिल्ड करना पड़ा। और OLX बड़ा ट्रिकी इदारा था क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ही सामान लगाता है प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए, और जब कस्टमर कंट्रीब्यूट करता है कंटेंट तो फिर काफ़ी लीगल इश्यूज आते हैं। कोई साहब अपनी किडनी बेच रहे हैं OLX पे 25,000 रुपए की, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को सेल पे लगाया हुआ है 1 रुपए में, सही? कोई जेल की फ्रीक्वेंसी कैच करने का कॉर्डलेस बेच रहा है, तो FIA साइबर क्राइम बुला रहा है आपको। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू मैनेज अ C2C प्लेटफॉर्म। And plus, I think it's one of that organization that really invested in making me the leader I am. So I got to travel Berlin and Amsterdam and Portugal, and मेरी ट्रेनिंग वहाँ BBC, जैसे मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं तो BBC आपको ट्रेन करेगा कि यार एज अ कॉर्पोरेट कैसे मीडिया को टफ क्वेश्चंस में हैंडल करना है। मैकिन्जी और बेन आई हुई थी कि भाई प्रेजेंटेशन केसेस कैसे बनते हैं। तो a Karachi boy getting to exposed a world level information was something जो कि I think was unreal to me, and I was always very obliged कि वहाँ पे मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे ये exposure दिया। How lucky of you and how fortunate, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर दराज का क्या सिलसिला चला? अगेन मेरे ज़िंदगी में ये थ्योरी है कि आपको 5 साल के बाद ना अपने आप को डिसरप्ट करना होता है, क्योंकि अल्लाह ने जो ग्रोथ का निज़ाम बनाया है वो ये है कि मसल कभी भी बड़ा नहीं होगा जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो अगर 4 kg के मसल डंबल से मसल ब्रेक हो रहा है तो अब आपको 8 kg का डंबल उठाना मसल ब्रेक करने। सो देन 5 साल जब OLX स्टैब्लिश हो गया, बेच दे एवरीवेयर, इट वाज अ हाउस होल्ड नेम, देन आई थॉट कि यार आई हैव टू डू other things. Yes. And then this chief marketing officer at Daraz, somebody called me from Singapore, we're looking for a person who's going to head Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, 5 countries. And you were everywhere. You were all known because of OLX. Yeah, at that time I became a good recognizable personality. तो मुझे लगा दराज की उस ज़माने में इमेज थी कि यार साहिर लोधी on Daraz original is Shah Rukh Khan, Sahir Lodhi on Daraz, right? People said कि copy or trust issues, and I thought it's a big problem to solve. Yeah, opportunity. Yeah, because आप जितना बड़े अपने लिए challenges लेंगे ना, आप उतनी ही बड़ी ऐसे रिसोर्स बनेंगे। I thought कि यार ये मुझे मसला हल करना है। So मैं जब दराज गया, so दराज में it was a game changer also because e-commerce Chinese Alibaba से सीखना was, you know, again the best in the world, right? Yeah, cool. And then
इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, क्योंकि OLX में मैं पहला दूसरा एम्प्लॉय था, तो मुझे दफ्तर बनाने थे, टीम खड़ी करनी थी. इधर देयर वाज ऑल ऑफ अ सडन 200 पीपल रिपोर्टिंग टू मी. आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ टीम, राइट. सो उधर मेरी ये वाली डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई. वहाँ से मैंने ये सीखा कि कंपनी की ग्रोथ के लिए मार्केटिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग. यू हैव टू हैव अदर नॉलेज, ऑपरेशंस. तो वो मुझे वेल राउंडेड जो मेरी पर्सनालिटी ऑफ मार्केटियर बनी, वो दराज में बनी. अच्छा. उसके अंदर ऑब्वियसली इंजीनियर्स के साथ काम करना, CFOs के साथ काम करना, ऑपरेशंस के साथ, कि अगर एक हेडफोन लाहौर में बैठा हुआ यूज़र कराची से ऑर्डर कर रहा है और उसको ट्रांसफ़र करने की इतनी लंबी कॉस्ट है, तो वाई नॉट लाहौर के सेलर की मैच मेकिंग लाहौर के बायर से करवा दो. तो उसमें ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक. सो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ जो हुआ OLX एंड दराज लास्ट 10 years वाज आई थिंक वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल. वाओ, दैट्स अमेजिंग. अच्छा, और फिर आया दवागो, ओनिक, ओरान एंड यांगो आपकी लाइफ में. या एंड अगेन क्योंकि 5 साल दराज में हो चुके थे, एंड अगेन वो टाइम था जहाँ आई हैव टू थिंक यार वेयर हाउ डू आई डिसरप्ट माई सेल्फ. तो मैंने उस वक्त, और मेरी सैलरी भी इतनी बढ़ गई थी कि अब आपको ये भी सोचना होता है, पाकिस्तान में ना एक जगह पे सैलरी पे कैप लग जाता है. उससे ऊपर जाने के लिए यू हैव टू अगेन थिंक ऑफ के यार व्हाट आर दी अदर राउट्स. तो मैंने उस वक्त इंडस्ट्री में ये फॉर्मुलाइज करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनलाइजेशन. एक तो होते हैं कंसल्टेंट्स जो आपको दूर दूर से बैठ के बताते हैं कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. लेकिन फ्रैक्शनल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके साथ हैंड्स ऑन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए. तो मैंने 3-3 घंटे मुख्तलिफ कंपनियों में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. मैं चीफ ग्रोथ ऑफिसर बन गया दवागो में, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन गया उड़ान विच इज़ अ फिनटेक. प्रोजेक्ट बेसिस पे मैंने यांगो के कम्युनिकेशंस और क्रिएटिव्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे काम शुरू कर दिया. तो मल्टीपल चीज़ें मैंने इन 6-7 महीनों के अंदर करी, जिससे मेरा जो सैलरी लेवल है वो ऑब्वियसली पर आवर काफ़ी बूस्ट हो गया. मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो गया. दूसरा मुझे लगा कि मेरा मल्टी कंपनी एक्सपीरियंस हो गया कि फार्मेसी कैसे चलती है, फिनटेक कैसे चलता है, राइड हेलिंग कैसे चलती है. फिर ओनिक हो गया. ओनिक वाज अ टेलीकम्युनिकेशन, एतिसलात एंड सर्कल्स लाइफ एक कंपनी है, उनका JV था. इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल टेलको. तो वो टेलीकम्युनिकेशन सीखी. सो आई गेट एक्साइटेड व्हेन यू लर्न समथिंग, राइट, एंड लर्निंग कांट बी स्टॉप्ड. अगर हो रही है तो दैट मीन्स क्या, फिर आपको अपने आप को डिसरप्ट करना. हाँ. अच्छा, तो what was it like, how was it different, like ओरान, ओनिक वगैरह, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट रहा हो आपका किसी एक के साथ इसमें? देखिए इनके लिए सबके अपने इश्यूज थे. कमेटियों, उड़ान वाज अ कमेटी ऐप के, औरतें जो कमेटियां डालती हैं, औरतों की वैसे भी बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है. इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, होते नहीं है. तो दे वर सॉल्विंग अ ग्रेट प्रॉब्लम. तो उधर भी आई थिंक रिवैम्पिंग द इंटायर प्रोडक्ट जर्नी, कि किस तरीके से पहली कमेटी, कितने लोगों को पहली कमेटी देनी है, कितने को लास्ट, और औरतों को किस तरह फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है. दवागो वाज ग्रेट आल्सो बिकॉज दवाइयों का 1 घंटे के अंदर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नहीं डिलीवर की और किसी की मेडिकल सिचुएशन है, सो थिंग्स कैन गो वाइल्ड, राइट. तो उधर पूरी डिलीवरी नेटवर्क को डिपेंडेबल बनाना, प्लेटफॉर्म को बगैर पैसों के मार्केटिंग के कैसे ग्रो करना है. 95% मार्केटियर्स जो है ना, वो आपको बोलेंगे यार आपको अगर ग्रो करना है आप इश्तिहार चलाएं. वेयरएज ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारे लीवर्स होते हैं. सो दराज में तो बहुत सारा पैसा मिलता था आपको इश्तिहार चलाने के लिए, क्योंकि इट वाज अ डीप पॉकेट कंपनी. लेकिन इन कंपनीज के साथ आई गॉट टू लर्न कि यार बगैर पैसों के ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आती है. इट वाज हार्ड वर्क, बट आई थिंक इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. कोई फेवरेट इनमें से? आई थिंक दवागो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उधर सब चीज़ें मेरे पास थी ग्रोथ के फंक्शन में. So yeah, I enjoyed that a bit more compared to. अच्छा, let's talk about Bypass, your latest venture. उसके बारे में कुछ बताएं. What inspired you to create it, and what kind of gap did you see in the market, and then you said, oh, I need to build this. करियर में ना आपके एक वक्त आता है जहाँ पे आप कहते हैं यार अब मैं एक हद तक किसी की सुन सकता हूँ, राइट. सही.
और फिर वो फ्रस्ट्रेशन बनती है कि यार आपको लग रहा है कि आप जो तजवीज़ दे रहे हैं कंपनी को वो कंपनी के फ़ायदेमंद है, लेकिन वो बोर्ड मीटिंग के अंदर नहीं हो पा रही। हाँ. तो फिर मैंने कहा यार व्हाई एम आई कॉम्प्रोमाइजिंग माई लर्निंग, Yeah. जो कि मेरे अगर आपकी ज़िंदगी में ये भी टेस्ट रुक जाए तो आप सीखेंगे कैसे, बिल्कुल. राइट? Yeah. तो फिर मैंने कहा इट्स टाइम कि यार आपका अपना वेंचर होना चाहिए Yeah. जहाँ पे देयर इज यूर द डिसीजन मेकर। Yeah. और फिर आपको अपने आप से ये सवाल करते हैं कि यार अगर आपको अपना कारोबार करना है तो इन विच सेगमेंट यू आर द बेस्ट। Yeah. अब हमने सीखा ही टेक्नोलॉजी है पिछले Yeah, 12-15 yeah, साल में, yeah. ग्रोथ एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल. सो आई थॉट यार दिस इज द थिंग टू बी डन। और पाकिस्तान तो वैसे भी अभी पूरा जो पाकिस्तान का रिटेल जीडीपी है, जो सामान खरीदते बेचते हैं आप, उसका सिर्फ 3% अभी ऑनलाइन है। इंडिया का ये शरह 7% है Okay. और मलेशिया इंडोनेशिया में ये 23%। तो अभी हमारे 3% सिर्फ डिजिटल सामान बिक रहा है। तो बहुत बड़ा हेडरूम है पाकिस्तान के पास। सही. सो जो लोग इस वक्त इस जगह पे बिजनेसेस डेवलप करेंगे उनका जो फ्यूचर वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ी हो सकती है। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू डू। अमेजिंग. अच्छा, आप जो ना, क्योंकि आपकी जर्नी आई हैव कवर्ड एंड व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस जो कि इन्हीं चीज़ों के बारे में होंगे, जैसे कि फॉर ऑल दोस यंग पीपल आउट देयर जो कि अपना करियर देख रहे हैं ई कॉमर्स में और टेक में, व्हाट्स द नंबर 1 स्किल दे शुड स्टार्ट डेवलपिंग नाउ? देखें, आपको जो है ना डेटा की स्किल्स जो हैं वो मेरे मैथ्स में फर्स्ट ईयर में 33 नंबर आए थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज पीपल हु आर सेड कि यार मैं एनालिटिकल नहीं हूँ। लेकिन आप अगर मैथ्स से डरेंगे और नंबर से डरेंगे तो आप अपने लिए बहुत सारी जगहें बंद कर देंगे। ठीक है. तो मैंने भी वो सीखा एंड आई हैड टू ड्रिल माई सेल्फ कि आप कैसे नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो आई थिंक कि नंबर्स जो हैं SQL, प्रोग्रामिंग, एक्सेल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। डेटा अगर आपको टेक्नोलॉजी में आना है, और टेक्नोलॉजी में नहीं भी आना तब भी, राइट? क्योंकि इवन क्रिएटिव बनाना या मार्केटिंग करना भी अब बहुत डेटा ड्रिवन हो गया। सही. अब वो वाली टाइम नहीं है जहाँ एक मीटिंग में आप कहते हैं कि मेरी फुप्पो जो हैं वो ये डिटर्जेंट और इस इंसाइट पे इस्तेमाल करती हैं तो मैं इस पे ऐड बना देता हूँ। ये मुझे आपकी बात पहले भी बहुत पसंद आई थी. राइट. तो दूसरा मुझे लगता है कि पहले आज से 10 साल पहले जब हम इंडस्ट्री में थे तो नॉलेज की जंग थी क्योंकि कम लोगों के पास नॉलेज थी। तो सबके पास है। अब क्योंकि ये AI और चैट GPT पे आप 2 प्रॉम्प्ट लिखें आपको बहुत सारी बुक की समरी मिल जाएगी। तो आई थिंक अब उन लोगों की बहुत अहमियत होगी जो उस नॉलेज को यूज करके डॉट कनेक्टिंग कर सकें। व्हाट कैन यू डू विद दिस इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट द नॉलेज। सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वही डॉट कनेक्शन के लिए आपको लोगों के साथ काम करना है। तो आप किस तरह लोगों को साथ मिला के काम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I think these are the two things. Now because you've worked with brands like Oran and Onyx to amplify the demand side growth, पहले तो मुझे ये समझाइएगा demand side growth क्या होती है, ठीक है। फिर मुझे ये बताइएगा कि what is a tried and true growth hack जो आप शेयर करना चाहेंगे न्यू स्टार्टअप के लिए who are looking to make it big। देखिए, डिमांड साइड ग्रोथ ये होती है कि कोई भी जो बिजनेस होता है वो कोई सर्विस बनाता है जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक हो गया। अब उस सर्विस के लिए डिमांड क्रिएट करना इट्स अ होल, वैसे कोई नई बात नहीं है क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि 4 P's है ना। अमूमी तौर से डिमांड लोग कहते हैं इश्तिहार चला देना, इश्तिहार चला दें, बिलबोर्ड लगा दें, टीवी पे इश्तिहार चला दें, डिमांड जनरेट हो जाएगी। डिमांड इस तरह जनरेट जनरली होती नहीं। डिमांड जनरेट हो सकती है सप्लाई से। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ई कॉमर्स यूज़ करती हैं, दराज यूज़ करती हैं, दराज पे अगर आपको बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन नहीं मिलेगी या एस्टे लॉडर की फाउंडेशन नहीं मिलेगी तो आप दराज नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं ये सारी फाउंडेशंस, बेनिफिट ये सब ले आऊँ तो आपकी डिमांड भी आ जाएगी। तो ये कहलाती है सप्लाई से डिमांड क्रिएट करना। ये भी मार्केटियर का एक मार्केटियर का एसेट होता है। इसी तरीके से जिस तरह फूड पैंडा ने किया कि डिमांड क्रिएट करी लॉजिस्टिक्स से कि आपको 20 मिनट में सामान घर पे पहुंचा दूंगा। तो अब वो वाली चीज भी डिजिटाइज होने लगी। पहले आप नान मंगवाने के लिए बच्चे को दौड़ाते थे कि भाई कुलचे ले आओ, लेकिन आप फूड पैंडा कर देते हैं क्योंकि 20 मिनट में आ जाती है। तो ये डिमांड जनरेट हो रही है लॉजिस्टिक के थ्रू। सो डिमांड को जब आप होलिस्टिकली देखते हैं तो वो ग्रोथ
और ये वाली और ये मेरी Perfect. फिर एक्सपर्टीज है कि Nice. सारी चीज़ों को कनेक्ट। सो कोई हैक जो कि आप बताएं विथ एनी न्यू स्टार्टअप, यू नो, इफ यू कुड शेयर इट विद एनी न्यू स्टार्टअप हु आर मेकिंग टू यू नो मेक इट बिग। देखिए हैक का लफ्ज़ जो है ना वो अमूमी तौर से ना मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि हैक का आपको मतलब है shortcut कि लगते कुछ हैं वो। ऐसा कर दो जो कि ज़िंदगी बदल दे, राइट? अच्छा। और अमूमी तौर से Yeah. ज़िंदगियाँ ऐसे बदलती नहीं हैं, बदलती हैं लेकिन उसके लिए दीज आर वन हिट वंडर्स, सही राइट? है। फॉर एग्जांपल इन दराज हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम क्रिकेट मैच दिखा दें अगर ऐप पे, तो लोग बोले यार तुम ई कॉमर्स हो, तुम क्रिकेट मैच, तुम Yeah. ओटीटी तो नहीं हो। हमने कहा यार हमारे पास वीडियो प्लेयर है, हम दिखा सकते हैं। हमने दिखाया तो ऑल ऑफ अ सडन 3x ग्रोथ आ गई, course. राइट? ये जिंदगी में कुछ एक आध दफा होने वाले ऑस्कर विनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप अपनी हाइजीन सही रखें। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर ग्रोथ। मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करें क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते इश्तेहार चलाने के लिए गूगल फेसबुक पे। तो किस तरह वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करे जो कि ऑर्गेनिकली लोगों के मोबाइल में आ जाए, लोग Yeah. देखें और आपको फिर कंसिडर करें। अच्छा अमार, मुझे ये भी बताएं क्योंकि अब जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जेनजी एंटर कर रही है और जेनजी के बारे में एक टाइम पे तो, और अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हुआ है, लेकिन फर्स्ट वी वर अडेप्टिंग टू देयर बिहेवियर्स एंड नाउ वी आर नाउ हैविंग इश्यूज। सो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट जेनजीज? देखिए मैं थोड़ा क्रिटिकल होता हूँ नई नस्ल के बारे में। ठीक और है। नई नस्ल क्या है, मुझे लगता है हमसे कुछ ही 10 साल 15 साल पहले की ही हैं। ऐसे ही है। वो ये है कि देखें इसको थोड़ा सा आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि पहले ना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें तालीम के साथ ना तरबियत भी दी जा रही थी, राइट? अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि मेरी भी 2 बेटियां स्कूल जाती हैं। अब टीचर्स को बोल दिया गया है कि ज़्यादा डांटे नहीं, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार धाड़ होनी चाहिए, आई एम अगेंस्ट दैट ऑल्सो, बट तरबियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी तरबियत बहुत, आप सिर्फ एक ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप उसमें क्लास में किस तरीके से आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जेनजी का ये वाला प्रॉब्लम है कि उनके जो वर्क एथिक्स हैं वो समझ रहे हैं कि यार अब हमारी तरह इदारे हमें मैनेज करने के लिए ढालें। और ग्लोबली बड़ी डिबेट चल रही है कि यार हाउ कैन यू मैनेज जेनजी, तो आप अपनी पॉलिसीज हल्की कर दें, कपड़े जैसे भी कोई शॉर्ट्स पहन के आ जाए तो यू शुड बी ऑल राइट, और अगर आप नहीं हैं तो आप एक दकियो नूसी बैंकर टाइप बॉस माने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का ना थोड़ा बहुत कोई डिसिप्लिन होता है, टाइमिंग्स का डिसिप्लिन होता है, किस तरीके से आपको लोगों को मुखातिब करना है, इज्जत का डिसिप्लिन होता है। इतनी ज़्यादा भी इज्जत नहीं करनी चाहिए कि आप किसी की अंधी तकलीद करें, लेकिन बाइपोलर एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि यार आप बिल्कुल ही किसी को कोई खाते में ना डालें। दूसरा मुझे लगता है ये तरबियत का एलिमेंट जेनजी का बड़ा मिसिंग। दूसरा ये कि देखें हम जब अपनी नौकरियां करने के लिए आए थे तो हम लोग माशी तौर से भी ना परेशान थे, क्या हमारे वालिदैन को हमारे पैसों की ज़रूरत थी, तो हम चाहते थे कि हम एक्सेल करें। अब बहुत सारे जो जवान इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनका प्राइमरी मोड इज़ नॉट कि यार हम किसी को सपोर्ट करना है ना, बहुत सारों का है भी और वो आपको दिख जाता है वर्क एथिक के अंदर, राइट? दे वांट इजी विंस। तो पेशेंस लेवल भी कम है कि यार 6 महीने मैंने ये काम कर लिया, नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, तो अब एचआर ये सोच रहा है कि यार हम इनको एंटरटेन्ड कैसे रखें 6 महीने में। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप यू आर नॉट अ न्यू एज बॉस, राइट? इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू, राइट? फ्लेक्सी टाइमिंग्स, ऑफ साइट ऑन साइट की डिबेट छिड़ी हुई है कोविड के बाद से जेनजी पे, तो उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हमें बिल्कुल बैंकर्स भी नहीं बनाने के 9 बजे सुबह आ जाओ और अपने बॉस को पूछो नहीं, जो बोल रहा है करो, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये जो दूसरा पोलैरिटी है कि यार खुला ढुल्ला वो भी नहीं। तो मुझे लगता है कि आई वैल्यू दोज यंग रिसोर्सेज हु आर इन द मिडल, who still are obsessive about detail, क्योंकि जब आप यंग होते हैं ना तो आपके पास स्किल नहीं होती। तो मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, एक्स एक्सिस पे स्किल होती है, वाई एक्सिस पे विल होती है। ठीक है। आप किस क्वाड्रेंट में हैं? हाई ऑन स्किल तो आप हो नहीं सकते क्योंकि आप यंग हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू मी? योर विल, योर पैशन, योर इन्वॉल्वमेंट, कि यार यू आर द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द रूम। सो वो चीज़ें अपने अंदर लेकर आए, डेप्थ पे, नॉलेज पे जाने की, मेहनत की, तो मुझे लगता है दैट्स द राइट
Nice. A intersection be that. That's very interesting. अच्छा अब थोड़ा सा LinkedIn के बारे में. Yeah. Your LinkedIn posts they get so much engagement. Yeah. 30,000 plus followers is what I last checked. Yeah. So and they don't lie, right? Because if they like something, they like it. So what drove you to start sharing your journey on LinkedIn, and how is, and that too openly, very overtly, and do you feel that it's changed the way people see your work? Yeah. देखिए मैंने जिस तरह आपको अपना करियर बताया ना, हम जब आप मैट्रिक बैकग्राउंड से आते हैं और Yeah. आपको नॉलेज मिलती है और आप देखते हैं कि अल्लाह ने आपको कहाँ पहुंचा दिया, तो Yeah. आपको लगता है कि यार ये नॉलेज जो है ना, Impart. इट हैज़ टू बी डेमोक्रेटाइज्ड. Nice. सो मेरा फिर अपना पर्सनल एक टाइम पे एजेंडा बन गया कि यार वॉट एवर यूर लर्निंग यू पुट इट आउट देयर. अब लिंक्डइन पे भी मुख्तलिफ टाइप का कंटेंट है, कोई मोटिवेशन टाइप का कंटेंट है, सक्सेस कंटेंट है, लोग अपनी जर्नी बताते हैं. मेरा ये है कि मैं टेक्निकल चीज़ें जितनी बता सकूं कि रीच, रिटेंशन, चर्न रेट, जो भी मैं सीखा है टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट, आई ट्राई टू राइट एकेडमिक टेक्निकल कंटेंट. Yeah. And then obviously when you start writing certain niche, you start attracting that kind of people, Yeah. right? Yeah. So वो फिर उस तरह की एक कम्युनिटी Nice. बनती चली गई, क्योंकि आप वन ऑन वन कितने लोगों को Yeah. मेंटोरशिप कर सकते हैं. Yeah. This is a way you can write and send information so people can absorb. That's very positive and very, very enlightening. Acha, Amar, if you could just give one advice to a budding CMO or CEO, what would it be? For a CMO, I would think is you have to start thinking non-advertising. ठीक है. A lot of CMOs are advertising only CMOs. In order to be successful in boardrooms, you have to be well-rounded. You have to talk metrics that your CFO and CEO can relate. Great. And your stakeholders can relate. और Wow. अमूमी तौर से marketeers उस language में बात नहीं करते. सही है. सो CMOs को के लिए ये एडवाइस है, और उनसे ये उनकी, और मुझे ये थोड़ी सी मैं उनको बोलूँगा कि ट्राई टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप विजडम. Okay. हाउ कैन यू वर्क विद योर चीफ कमर्शियल ऑफिसर, योर इम्पोर्टेंट पीपल एंड देयर टीम्स Yeah. टू मेक अ लार्जर देन लाइफ. क्योंकि अकेले जो है ना, आप एक सर्टेन लेवल तक इम्पैक्ट ला सकते हैं. आप जब सबको साथ लेके चलते हैं, और अमूमी तौर से हम पाकिस्तानियों के अंदर ना सेल्फ विन की बहुत ज़्यादा. बड़ी चाह होती है कि मेरा नाम अलग से आए तो मेरे पैसे बढ़ जाएं. तो मुझे लगता है इससे बालातर होके आपको ना ये करना है, तब लॉन्ग टर्म में यू विल बी अ बिगर मार्केटिंग पर्सन. Of course. सीईओ के लिए मेरी एडवाइस ये है कि डू नॉट प्रमोट पीपल बेस्ड ऑन जस्ट परफॉर्मेंस. Okay. क्योंकि अमूमी तौर से परफॉर्मेंस अगर एक मेजरमेंट है, तो अगर एक साहब हैं जो लोगों की तजलील करके, लोगों को वीकेंड्स पे काम करवा के वो परफॉर्मेंस ट्रिगर करवाते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर हो ये रहा है कि जो सीईओ का नेक्स्ट बंदा है वो सबसे टॉक्सिक बंदा होता है, और वो सबसे ज़बरदस्त काम करवा रहा होता है, और सीईओ कहता है यार दिस इज़ माय राइट हैंड, क्योंकि ये काम निकलवा रहा है. लेकिन अमूमी तौर से वो लोग जो कि लोगों को के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कंपनी कल्चर बिल्ड करते हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो कुछ सस्टेनेबल बिल्ड कर रहे हैं. सही. तो अपने अराउंड ऐसे लोग बिल्ड करें जो आपको राइट रियलिटी ऑफ द कंपनी दें, क्योंकि एसी वाले कमरे में ना आप भूल जाते हैं कि नीचे असिस्टेंट मैनेजर किन मुश्किलात से गुजर रहा है, और आपके लिए रियलिटी वो होती है जो आपके N-1 बताते हैं. Yeah. तो आप समझे ना, अभी भी जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं वो ये समझते होंगे कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं बोलते हैं सर क्या काम किया आपने, ब्रिलियंट था. तो उनके लिए मुल्क की रियलिटी वही बन गई. Yeah. इसी तरह सीईओ के लिए भी ना, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी सीईओज को मैंने देखा है वो अपनी कंपनी को गलत रीड कर रहे होते हैं. उनको पता ही नहीं होता नीचे चल क्या रहा है. नीचे चल क्या रहा है, और उनके जो N-1 होते हैं वो उनको कभी सही क्योंकि वो भी बताते तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उन्हें ये पता करना जरूरी है. अच्छा ठीक है. इन कॉन्वर्सेशन विद मोहम्मद अमार हसन, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द शो, व्हिच इज द फायरी गेम्स. वी आर गोना प्ले 3 गेम्स विद यू, short. Are you ready, Amar? All right, we're going to start with Inspire Fire. What happens is I'll say a word and you say whatever first comes to your mind. It could be a short story and a quick thought, or maybe any expression that you'd want to give about that. Could be inspirational as well. My first word is startup. testing something that will test you, but would be the best learning of your life. Growth. Growth is non-marketing growth.
IOBM. Transformational. Wow. Creativity. Inspiration. Pakistan. Pakistan is something I'm a deeply patriotic person. It hurts me to see where we are right now. And it's a big guilt for me that I can't do something, because a lot of things that can change Pakistan is political, and the type of scenario we have right now in Pakistan, you can't be into the political circle. Yeah. So yeah, it hurts me that I can't fix my country. You've summed it up for most of us sitting in the room right now. Change. Change is internal, realizing that you're not right. If you think you're right, you can't change. So you have to constantly see yourself in the mirror and say you're not right. और अमूमी तौर से जितना हम आगे ग्रो करते जाते हैं, हमारी अनलर्निंग की कैपेसिटी कम होती रहती है. So you have to always be it in your spouse relationship, in your talking to your mother, talking to your friends. Yeah. I think हमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने व्यूज़ के बारे में. Next is customer loyalty. The most ignored thing in Pakistani corporate sector. It is a cost center. Customer experience, people think of it as a cost. Loyalty is an output of great customer experience, and a great loyalty is your biggest marketing saver. You will save a lot of money if you have good loyalty and retention on the platform, which will all derive from a great customer experience, and people don't invest in it. Such wise words. Last but not the least, leadership. Leadership is tricky. It's difficult to summarize it in one word, but I think a lot to learn from Prophet Muhammad, peace be upon him. There is a whole book on corporate learnings from Prophet. Great lectures. Just to share one thing, आपके कमरे में कोई आपसे बात करने आता है तो आप उनसे इस तरह भी बात कर सकते हैं, बट हमारे जो प्रॉफिट थे वो अपनी पूरा पोस्चर हिला के ना उनसे इस तरह बात करते थे. सो इट्स अबाउट गिविंग पीपल इम्पोर्टेंस, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ, टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल. सो या, a lot to learn. Nice. Acha, our next round is rapid fire round, and we're going to have quick questions and quick answers. Quick is the key word here. Are you ready? Ready. All right, let's fire away. Your craziest memory from your IOBM days? My dramatics career. Ooh, a book or resource every marketer should have on their shelf. How Brands Grow by Byron Shaw. Wow. One industry you'd love to explore that you haven't yet? I wanted to be a doctor. लेकिन आपने फार्मा में काम किया हुआ है. अच्छा, your biggest inspiration? Most of my ex-bosses, namely Sidra Iqbal, Bilal Bajwa in OLX, Essen in Daraz. So yeah, all these people. जिनको आपने नाम नहीं किया ना बस. अच्छा, one surprising thing about you? I have dual personality. Whoa, people know about it. Yeah, I think they figure it out. आप जब बाहर होते हैं तो आप एक सर्टेन तरीके से बात करते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के सामने. Yeah. और मैं इस तरह हूँ नहीं. अच्छा, what's better, building a brand from scratch or managing an established one? I like this question. You can't. It's not an either or. I think before building your own brand, you have to work on an establishment. IOBM buddies you still catch up with? I don't know people recognize them or not, but Nafe, Ahmed, Rizwan, Tariq, we have a group, but there are extended group also जो कि आप साल में 2-3 दफ़ा मिलते हैं, but ये वो 5 लोग हैं, Serish, Ali, and जी actually 5 से ज़्यादा हैं, 10-12 हैं, Anam, Baji, Jia. You know, it's a big group. Yeah, I'm sorry if I'm forgetting anyone, but I think 15 लोगों का ग्रुप है जो महीना 2 महीने में मुलाकात. Wow, that's amazing. Best investment you've ever made in yourself? I think lately building my LinkedIn profile. Best advice you have ever received? सिद्रा इकबाल used to say कि काम हो जाता है और काम तरीके से भी हो जाता है, so do the तरीके वाला काम. Wow, a lot there about. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग we're going to move on to the moment of truth segment, and I'm going to ask you some really different kind of questions. Okay. Yeah, biggest career mistake that turned into a lesson? I joined sales in ARY. ठीक है. It was not a great experience over there, organizational behavior wise.
बट द लेसन वाज दैट कि आपको बुरे हालात भी बर्दाश्त करने होते हैं। सो आपको अंदर वो अपनी ग्रिट होनी चाहिए कि क्योंकि करियर कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती यूँ ना, इट इज़ ऑलवेज अ स्क्विगली करियर। सो इट गेव मी अ लेसन कि यार हाँ, बुरा टाइम भी बर्दाश्त करना होता है, बुरे बॉसेस को भी किस तरीके से आप बर्दाश्त करें और उनके साथ मनूवर करें। एंड देन सेल्स इज़ ऑल्सो वेरी हम्बलिंग, राइट, कि आपको किसी की रिसेप्शन पे आधा घंटा वेट करते हैं तो आपको चाहे आप जितने भी बड़े बैकग्राउंड से आए हो, it humbles you. So that's a great thing. Nice, interesting. Acha, one client or project you were terrified of but ended up loving. I'm not generally scared of any project. You've taken up opportunities like that. The ones with more problems and you've taken it. Okay. What's one skill you pretended to know in your early days but had to learn on the job? Everything. जब आप ग्रेजुएशन से निकलते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली, तो आप सभी सीख रहे होते हैं। Nice. अच्छा, reflecting on IOBM days, what's one thing you thought you knew at IOBM but totally flipped in the real world? Relationships. Yeah, relationships are difficult to make outside campus. Yeah. Okay, name a course or subject you never thought you'd use but actually do it all the time. Professionally, brand management. But I think history of ideas, Wahab Suri used to teach that course, and it was a completely transformational course in terms of ideation and philosophy, and I apply a lot of psychology and philosophy in whatever I do. So Any three teachers, your favorite ones from the institute? I would not rank anybody in my favorite, but I think Akhtar Mahmood, who recently passed away, was great. Wahab Suri was awesome. Couple of names that I can get. One thing you wish you would tell your younger self? Focus on academics more and seriously. Because in CBM I ignored it after a few semesters. What's the hardest advice you ever received that you're thankful for now? Don't be emotional. If you could switch jobs with any famous entrepreneur for a day, who would it be and why? I always thought how Elon Musk is functioning, right? So I wanted to probably switch and experience that. Okay. All right. One business buzzword you secretly dislike? Strategy. Good job, Amar. We have our last bit with you. It's the last segment of the show, which is that you need to give advice to the students who are with us right now on campus and to those who are stepping into the careers, those young professionals. So if you could give that. देखिए, आपके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि success and failure is not two spectrum of a line. फेलियर इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। दूसरा ये है कि मार्केट बहुत रूथलेस है, कंपेटिटिव है। अगर आपको उसमें सरवाइव करना है तो आपको कोई ना कोई ऐसी मेहनत करनी होगी, स्पेशलिटी बिल्ड करनी होगी। आपको जनरलिस्ट नहीं बनना, आपको स्पेशलिस्ट बनना। वर्क एथिक अपना सही कर लें, डिसिप्लिन आप अपना बिल्कुल सही करें, सुबह सही टाइम पे उठना, रात सही टाइम पे सोना, ये सारी चीज़ें आपके वे ऑफ वर्किंग और प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं। रिलेशनशिप्स गलत टाइम पे बनाना जो है वो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर को डीरेल करेगा। अगर है भी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रेकअप कर लें, आप उसको जो है एक सर्टेन साइलों में मैनेज करें। अपने बड़ों से सीखना और इज़्ज़त देना जो है ये तो प्राइमरी चीज़ है। तो मुझे लगता है अगर आप किसी से सीख तब तक नहीं सकते जब तक आप उसको एक पेडिस्टल पे नहीं बिठाएंगे, तो वो इज़्ज़त बिल्कुल देना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम किसी को इतनी इज़्ज़त ना दें कि तकलीद करें, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको अपने ऊपर वालों को चैलेंज करना है, स्टेटस को चैलेंज करना है, क्योंकि अगर आपने वही चीज़ सीख ली तो वो आपको फ्यूचर प्रूफ नहीं बनाएगी। और बाकी ये दुनिया जो है ये कमर्शियल हुज्जत के लिए नहीं बनाई गई है। आगे से आगे चाहने की जो चाह है वो आपको कब्र तक ले जाएगी। तो वो कभी भी आपको 1 लाख की सैलरी अच्छी लगेगी, फिर कम लगने शुरू हो जाएगी। मैं इस वक्त कई लाखों की सैलरी पे पहुंच चुका हूं, तो मैं आपको वो स्टेयर से बता रहा हूं कि वो सैलरी कभी भी आपके लिए आपको हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होती। तो अपना इखलाक, अपना जो दीन है और जो अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप है और जो आपका अपने खालिक के साथ रिलेशनशिप है, वो आपका उस पर बहुत फोकस करें।
That was brilliant, Amar. Thank you for coming in today. It was great to have you. Thank you, Ji. We wish you all the best, and may you make us proud wherever you go, and Thank that you so much for keep inviting- coming back. Yeah, thank you so much. All right, that was Muhammad Amar Hassan. To our viewers, thank you for joining another episode of Celebrating Sweet Success. This show wouldn't be possible without the amazing support of Cadbury Dairy Milk, Dreamworld Resorts, and the IOBM Media team. Until next time, keep chasing your dreams, stay inspired, and like Amar, always keep innovating, keep learning, and always bet on yourself. This is Sarah Mashood signing out. Allah Hafiz.